preparing the citizens for a possible surge with the help of mock drills. Now, amid the fear of a BF7 surge, mock drills are being conducted across hospitals to focus on the availability of health facilities in all districts. The capacity of isolation beds, oxygen support beds, ICU beds and ventilator supported beds are all being taken stock of. Union Health Minister Mansukh Mandavia visited Safdarjung Hospital to review the COVID mock drill and said that India is preparing for an outbreak if there is any possibility of such. The centre also issued an advisory to this effect, and amid a spurt in COVID-19 cases, in some countries, the national capital, on the other hand, is conducting more drills in Delhi hospitals and various facilities like LNJP hospital, private hospitals, where mock drills are being done to ensure COVID management. Now, mock drills for preparedness is currently being conducted in hospitals in Jammu, Telangana, Odisha, Mumbai, Delhi and others. Now, Karnataka also, on the other hand, has implemented several guidelines before New Year to ensure that preparedness is in place and everybody is taking precautions. This is the latest with regard to the mock drills being conducted across the nation as states prepare for a possible COVID spike. We'll get details for you from the ground in terms of what exactly is taking place in these mock drills. And what we saw in Safdarjung Hospital was that there were these equipments that were in display which show what exactly would be done if there is a surge in the number of cases that are coming in due to the COVID outbreak. All right, I have my colleague Vishnu Sharma joining me from Jaipur, Manohar Kesari from Delhi, Yash Raju from Karnataka and Shakti Sangham from Lucknow. Let me start with my colleague Manohar Kesari. Manohar, now we just saw Mansukh Mandavia in fact visit the Safdarjung Hospital and you did take us through what exactly was the situation there. Now, in terms of the mock drills that were being conducted there, you spoke to some of the health officials as well. What are they saying? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सफदरजंग हॉस्पिटल में आए और यहाँ पर इन्होंने मॉक ड्रिल का लिया और इन्होंने देखा कि किस तरह से आईसीयू बेड की तैयारी है, किस प्रकार से जो डॉफ एरिया है, जिस प्रकार से स्क्रीनिंग एरिया है वहाँ पेशेंट्स को कैसे लाए जाएंगे, किस तरह से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, सप्लाई क्या है। क्योंकि हमारे साथ कुछ ही देर में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर BL सेरवाल वो भी जुड़ जाएंगे। लेकिन आपको ये दिखा दूँ, ये सारे लैब टेक्नीशियन हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहन है, वरुण है और तमाम उनके साथी हैं जो अलग अलग लैब टेस्टिंग के अलावा जो काम है सैंपलिंग लेने का, क्योंकि इसमें ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है कि मरीज से जो सैंपल लिया जाता है कोरोना से जो सस्पेक्टेड मरीज होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं डॉक्टर BL सेरवाल और इनसे बात करेंगे। सेरवाल सर, जिस प्रकार से आज मनसुख मांडविया ने आप लोग के साथ मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया, जायजा लिया तैयारियों का, उन्होंने क्या क्या देखा और कितना संतुष्ट नजर आए? देखिए, उन्होंने एक्चुअली यहाँ आने का सबसे पहला ये था कि मरीज जो आता है उनको कोई असुविधा ना हो। उनका प्राइमरी कंसर्न था कि मरीज आए उनको इमीडिएटली कोई रिसीव करने वाला हो और जांच जब वो डॉक्टर करते हैं उसके बाद सैंपल कहाँ लेते हैं वो कोई नर्सिंग सिस्टर या कोई MDS साथ हो ताकि मरीज़ वहाँ सैंपल के लिए जाए, उसके बाद उनका सैंपल तुरंत लगा दिया जाए और उसके बाद अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो उन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई देखा कहाँ से आता है, कैसे होगा, वो उपलब्ध है कि नहीं है। और उसके बाद जो हमारे एडमिशन फैसिलिटी है सारी पेशेंट्स के लिए उनकी जांच की और वेंटिलेटर जो बेड हैं उनकी वो किया है निरीक्षण। तो मंत्री जी काफ़ी खुश थे और मुझे लगा कि उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम काम कर रहे हैं और आने वाली अगर वेव आती है तो हम सफदरजंग हॉस्पिटल काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हैं। क्योंकि सर आपने अलग अलग संस्थान में फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव की बात करें कि आपने देखा, आपके पास एक्सपीरियंस भी रहा है। इस बार आपको क्या लग रहा है, जिस प्रकार से चाइना में लगातार और रोज़ाना 1 लाख से ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं और धीरे धीरे वो पूरे उस कंट्रीज़ को, उस महाद्वीप को धीरे धीरे चपेट में ले रहा है, फिर उम्मीद की जा रही है कि साउथ ईस्ट एशिया में आएगा, फिर भारत भी चपेट में आ सकता है? देखिए, वो हो सकता है लेकिन हमें ये लगता है कि भारत में क्योंकि 220 करोड़ डोजेज अभी तक लग चुकी है वैक्सीन की, साथ जो है ना पेशेंट जो है ना काफ़ी
बड़ी मात्रा में लोग नेचुरल इन्फेक्शन हुआ या सब नेचुरल इन्फेक्शन हुआ। तो इसी तरह से दोनों तरह से वैक्सीन भी और जो है डिजीज़ भी, तो एक तरह से कंबाइंड वैक्सीनेशन का काम वो करेंगे। तो मुझे लगता है कि इंडियन पॉपुलेशन काफ़ी तरह से सुरक्षित है, लेकिन उसके बावजूद भी जब डिजीज़ आता है तो डिजीज़ किस तरह का पैटर्न अख्तियार करता है वो एक्चुअली उसके लिए हमें चौकन्ना रहना पड़ता है। और बेसिकली जो केसेस आएंगे उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करने के बाद पता लगेगा कि क्या पैटर्न और किस तरह से बिहेव कर सकता है केसेस। इसलिए सफदरजंग हॉस्पिटल में कितने बेड्स, कितने आईसीयू बेड्स, कितने मेन पावर्स आप लोगों ने एक्स्ट्रा इसके लिए व्यवस्था की? हमारे पास अभी यहाँ 44 बेड यहाँ हैं और 162 बेड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में हैं और पर्याप्त मात्रा में मैन पावर, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सिस हो, पैरामेडिक्स हो, हमने ऑलरेडी ड्यूटी पे लगा दिया गया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली ये जो केसेस आए उनका बाखूबी जो है इलाज हो और जल्द से जल्द हम इससे बाहर निकलें। अब तक सफदरजंग में सर इस जो सीज़न है इसमें कितने मरीज़ आ चुके हैं? अभी तक कोविड की कोई हमारे पास एडमिशन नहीं है पिछले कुछ दिनों से, तो वो एक अच्छी बात है और इसीलिए हमें उम्मीद है कि शायद हम जो लगता है कि चाइनीज़ वाली जो स्ट्रेन है उससे हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं और ज़रूरत पड़े तो वैक्सीन डोज की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपको अंदर की तैयारियों के बारे में भी दिखाता हूं, जिसका जायज़ा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लिया है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये ट्रायज एरिया है और इस ट्रायज एरिया में स्क्रीनिंग ओपीडी की व्यवस्था की है। अगर कोई मरीज़, सस्पेक्टेड मरीज़ आता है तो उनका सबसे पहले एंट्री यहाँ पर होगी। ये देखिए, ये पेशेंट एंट्री एरिया है और यहाँ पर उससे सिम्टम्स के बारे में पूछा जाएगा और सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद ये जो डॉफ एरिया है, डॉफिंग एरिया में सैंपल्स लिए जाएंगे। ये आप देखिए, यहाँ पर ये डॉफिंग एरिया बनाया गया है। यहाँ से सैंपल्स लेने के बाद अब आपको दिखाता हूँ कि कहाँ लैब टेस्टिंग होगी, क्योंकि लैब टेस्टिंग की भी पूरी व्यवस्था की गई है। ये आप देखिए, ये यहाँ पर ये कोविड नेट लैब है। ये आप देखिए, यहाँ पर 4 मशीनें रखी हुई है। 2 मशीनों की अगर हम बात करें तो ये देखिए, इसको हम टच नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरी तरह से सैनिटाइज है। सैंपल्स भी इसमें रीड किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक सैंपल्स हैं, ये लेटेस्ट अत्याधुनिक मशीन है। इसमें सैंपल्स दिए जाते हैं, करीब हाफ एन आवर में ये पूरी तरह से जांच हो जाती है कि कोई मरीज़ कोविड है या नहीं है। और उनके तकरीबन रिपोर्ट तैयार करने में ये दूसरी जो मशीन है जिसके बारे में आप देख रहे हैं, बहुत नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और 1 घंटे में करीब रिपोर्ट के बारे में जानकारी हासिल हो जाती है। तो ये यहाँ पर ये तैयारियां हैं। इसके बाद मरीज़ को अगर उन्हें वार्ड की ज़रूरत होती है तो वार्ड में ले जाया जाता है। अगर मरीज़ का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है, अगर आईसीयू की ज़रूरत है तो मैं आपको वो भी नज़ारा दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये जो सारी एरिया है वो ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था की गई है, जिसका जायज़ा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लिया और उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड नज़र आए। ये आप देखिए, ये एरिया जहाँ पर 28 बेड्स की व्यवस्था की गई है और उसमें 16 बेड्स की। यहाँ पर आप देखिए, वेंटिलेटर लगा हुआ है, मॉनिटर्स हैं, मास्क हैं, ऑक्सीजन सप्लाई की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि कोई दिक्कत ना हो। जी। Right, Manohar, stay with us. Let me quickly rope in my colleague Yash joining us from the Karnataka there. Yash, take us through now the details of the mock drills that are being conducted in the south, in the hospitals there. Yash is in fact in Tamil Nadu, let's just correct that. Yash, now take us through the preparations there. All right, Yash, if you're able to hear me? आवाज ही नहीं आ रहा यार। Right, all right. We'll get my colleague on the broadcast shortly. Before that, let me head to my colleague Vishnu Sharma, who's joining us from Jaipur. Vishnu, take us through the preparations for mock drills that are being conducted in Jaipur as of now. देखिए, एसएमएस अस्पताल में अब से थोड़ी देर बाद मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे। देखिए, देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक ली थी, तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उस बैठक में मौजूद थे, साथ ही जो चिकित्सा मंत्री हैं वो भी उस बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को मास्क लगाने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं घबराने की आवश्यकता अभी नहीं है, क्योंकि अगर राजस्थान में एक्टिव केसों की बात की जाए तो वो 83 एक्टिव केस राजस्थान में हाल फिलहाल है।
तमाम तरह की तैयारियों का आज जायजा लिया जाएगा। जो एक प्रदेश का सबसे बड़ा जो SMS अस्पताल है, वहाँ तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। देखिए, दूसरी बात, जब कोविड की सेकेंड वेव राजस्थान में आई थी तो तमाम छोटे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए थे। वो ऑक्सीजन प्लांट अब कहीं ना कहीं तैयार हैं, जो वो चल रहे हैं, पूरी तरह से वो वर्किंग में है। उनको लेकर अब किसी भी तरह की अगर स्थिति बिगड़ती है, जैसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परसों अपना बयान जारी किया था कि अगर किसी भी सिचुएशन के लिए राजस्थान तैयार है, तमाम हॉस्पिटल की मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा। SMS हॉस्पिटल की तमाम तैयारियों का जायजा यहाँ पर लिया जाएगा। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, साथ ही जो कलेक्टर हैं वो भी RUCH जाएंगे। उसके बाद जहाँ तक यहाँ भी आने का उनका कार्यक्रम बन सकता है। देखिए, अगर चिकित्सा मंत्री की बात करें तो कल जो बैठक CMO में हुई थी, बड़ी बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई। तमाम वहाँ पर लोग मौजूद थे, CS उषा शर्मा भी मौजूद थी। तमाम लोगों ने, मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद यही कहा कि जो राजस्थान में जो स्थिति है वो अभी इतनी ख़राब नहीं है और राजस्थान में तमाम जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में है। लेकिन अभी हाल फिलहाल कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। लेकिन जो एयरपोर्ट है वहाँ पर रैंडम सैंपलिंग की शुरुआत कर दी गई थी। साथ ही आज पूरे प्रदेश में जितने भी छोटे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तमाम हॉस्पिटल्स में जो है मॉक ड्रिल की जाएगी। तमाम हॉस्पिटलों को देखा जाएगा कि हॉस्पिटल हमारे कितने तैयार हैं, ऑक्सीजन बेड्स कितने तैयार हैं, वेंटिलेटरों की क्या स्थिति है। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं वो आज देखी जाएंगी। जी, Right, stay with us, Vishnu. Let me, in fact, rope in my colleague Shakti Sangam joining us from Lucknow. Shakti, take us to the preparations in Uttar Pradesh as of now. We're learning, of course, that several guidelines also have been issued, precautions are being taken. What's going on ground? बिल्कुल, देखिए, मॉक ड्रिल को लेकर जो प्रशासन या शासन द्वारा जो तैयारियां करनी जाएगी वो सुबह से देखने को मिलता है। आज यहाँ के डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक एक अस्पताल का दौरा किया, जहाँ मॉक ड्रिल को लेकर जो तैयारियां हैं कोविड नियंत्रण को लेकर वो देखने को मिलता है। इस वक्त मैं एक अस्पताल में मौजूद हूँ, यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन इससे पहले जो प्रशासन की तरफ से बेड के रिजर्व की बात हो या फिर मास्क को लेकर वो चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर हम चलेंगे, कुछ लोग हैं जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक आबादी के रूप में भी अगर देखें, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर लोगों को कंट्रोल करना भी मुश्किल है। लेकिन प्रशासन और शासन इसको लेकर लगातार तत्पर है। इसको लेकर लंबे समय तक बैठक भी हुई, कई मंत्री भी उसमें शामिल थे, खासकर स्वास्थ्य मंत्री उसमें शामिल थे। आज कई अस्पतालों का दौरा किया गया, जहां पे वो देखें कि वहां की स्थानीय व्यवस्थाएं क्या है। इसमें कई ऐसे पैमाने हैं जो शुरुआती दौर में हमने कोविड को लेकर देखा कि कोविड जिस तरह से महामारी थी, क्या कुछ व्यवस्थाएं करनी चाहिए, या फिर मॉक ड्रिल को लेकर जो तैयारियां परखने की चीज़ें स्थानीय स्तर पे वो चीज़ देखते हैं मिलती है। हालांकि अभी ये वैक्सीनेशन को लेकर कोई आया नहीं है, लेकिन इससे पहले शुरुआती दौर में हमने देखा कि उसको लेकर तैयार थे। लेकिन वैक्सीनेशन की जो टीम है, एक तरह से जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया था उसको लेकर देखने को मिलता है, इनसे हम बात करेंगे। मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां की गई है, आपके द्वारा क्या कुछ तैयारियां हैं? खैर, ये बात करने में सक्षम नहीं है, लेकिन जो शासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया था उसका साफ तौर से यहाँ पर पालन करते हुए देखा जा रहा है। और जो अलग अलग अस्पतालों की बात किया जाए वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। स्वास्थ्य मंत्री यानी कि डिप्टी CM से जब इस मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि आबादी के रूप में सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर जो तैयारियां करनी चाहिए वो देखने को मिलता है। जी, Right, stay with us, Shakti. Let me, in fact, rope in Manohar again. Manohar, you did, in fact, tell us the different processes. You spoke to some people there on the ground who were telling us how exactly these mock drills have been conducted. Now, in terms of the resources being deployed, Manohar, the number of oxygen tanks, the number of beds, the ICU beds that are there, take us through the details there in Safdarjung, and then a little bit about the other hospitals, some private hospitals, as well as LNJP also, which are preparing for the next wave. देखिए, बिल्कुल, अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो सिर्फ सफदरजंग हॉस्पिटल नहीं बल्कि लगभग 1 दर्जन ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर कोविड सेंटर्स की तैयारी की गई है। हालांकि आज यहां पर मॉक ड्रिल हुआ। उसके अलावा दिल्ली सरकार के अगर अस्पतालों की बात करें तो लोकनायक हॉस्पिटल में, GTB हॉस्पिटल में, राजीव गांधी हॉस्पिटल में, इन तमाम जगहों पे इसकी तैयारी की गई है। और यहाँ का नज़ारा आपको एक बार दिखाऊं, क्योंकि जो हमने सेकेंड वेव में झेला है, जिस प्रकार
रफ्तार से सेकेंड वेव में हमने देखा कि लोग रात में छोटे छोटे सिलेंडर लेकर के ऑक्सीजन से गोदाम में जा रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, कहीं फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। अस्पताल प्रशासन की ओर से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा था और कहा गया था कि 24 घंटे के लिए ही मात्र ऑक्सीजन बचे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा जाए कि यहाँ पर ज़बरदस्त तैयारियाँ की गई है। ये आप देखिए, तमाम जो यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, जो लैब टेक्नीशियन हैं, जो सैंपल कलेक्ट करने वाले एनओ हैं, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था का एक नज़ारा मैं आपको दिखाऊं तो हमारे साथ कैमरा पर्सन दिलीप हैं, वो दिखाएंगे। दिलीप, आप थोड़ा सा मूव करके ये आप देखिए, ये यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है और हर बेड पे ऑक्सीजन की सुविधा है, पंपिंग की सुविधा है, बीपैप की सुविधा है, SpO2 सिस्टम लगाए गए हैं और दवाइयों के लिए ट्रॉली मशीन है। अगर कोई भी पेशेंट्स के लिए ज़्यादा अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ इसी ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर कहा जाए 150 से ज़्यादा बेड्स की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ अभी कुछ देर पहले डॉक्टर BL शेरवाल, जो यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, वो एक्सक्लूसिव तौर पर न्यूज़ के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने तैयारियां की हैं। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए और उन्होंने कहा सिर्फ दिल्ली में ही क्यों, पूरे देश भर में जो मॉक ड्रिल हुआ है वहाँ भी इसी तरह के नज़ारे होंगे। कई राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने क्या तैयारियां की है। एक बार फिर मैं आपको दिखाऊं कि ICU है। ये ICU में हमने उस समय जो झेला है उससे सबक लेकर के फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव से हमने सीख ली है और उसकी ही तैयारियां की है। तो आज इसकी टेस्टिंग हुई है। ये आप देखिए, आगे एक एक मॉनिटर की टेस्टिंग की गई है। ये सामने मॉनिटर हैं जो तमाम वाइटल पैरामीटर्स को, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, हार्ट रेट हो, ये सभी चीज़ें, ये आप देखिए, ये CPO2 सिस्टम है, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से भी गाइडलाइंस जारी की गई थी कि इन सभी चीज़ों का पर्याप्त व्यवस्था की जाए, अगर नहीं है तो उसे रिस्टोर किया जाए। ये आप देखिए, यहाँ पर वेंटिलेटर लगाया गया है, वेंटिलेटर मशीन है, ये एक तरह से लेटेस्ट मशीन लगाई गई है और सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती है। ऑक्सीजन से लेवल क्या है ये आप देखिए, पिप बाय CPAP है, ऑक्सीजन 50% है, कंट्रोल्स है, अलार्म्स है, सारी सुविधाएं इसमें हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज जो टेस्टिंग की गई, ये तमाम सुविधाओं को लेकर के उसमें सफदरजंग तो पास हो गया है और तमाम हॉस्पिटलों से उम्मीद है कि वो पूरी तरह से तैयार होंगे। जी, right. So the complacencies that were seen earlier in the system, the loopholes that were seen earlier, are being addressed at this point, is what we can see. Now, being joined by my colleague Ajay Jandal and Rashra Arzu as well. Let me first rope in Ajay. Ajay, now take us through the preparations in Jammu. Where are you present currently, and take us through all of the equipment that is there around? Well, see, right now I am standing over here at the Gandhinagar Hospital, where you could see that the exercise to check the preparation of the health workers and the other equipments installed in the recent past here in the Jammu's different hospital that is going on as planned by the health ministry of the country, that everyone has to go for the mock drill today. And this is one of a hospital which was receiving the patient during the first, second and the third wave. This was a COVID hospital, and now this was operating as a normal hospital. But after the new variant was detected in the country, this mock drill has begun, and they have dedicated 30% of its beds for the COVID patient. No doubt that as of now there is no such threat that the patient number of patients which is detected positive here in the Jammu region, that is not that high. But still they are preparing to see any kind of situation here in the Jammu in the coming day, as expected that there are possibility that like Japan, China and the other countries, they are facing the tough time. There are possibility that could happen. You could see earlier what was happening, that in the first wave and the second wave there was a shortage of oxygen, but now oxygen plant has been installed in the different hospital and almost each and every hospital of the Jammu's block level and other level. As far as the second threat and the second the issue was basically the
ventilation, and that's why ventilator has been installed here in the hospitals, most of the hospitals in Jammu, and you could see that each and every hospital is having ventilators, also monitors and other things which was required in that time. That is basically not an issue nowadays in the main hospital as well as other hospitals. So this is what exactly is happening over here. I'll try to speak to the doctor who is here. Ma'am, ये बताइए कि किस तरह की वी हैव विद अस हेल्थ वर्कर ओवर हियर, मैम किस तरह की तैयारियां हैं? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सारे मॉनिटर्स और सारी मशीन्स को चेक किया जा रहा है. बेसिकली पर्पस क्या है? पर्पस हमारा यही है कि कोविड की जो थ्रेट आ रही है, जो हमने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन यहाँ पे लगाए हुए हैं, 4 वेव आने का जो है चांस, तो इसी का ये हमने मॉक ड्रिल रखा हुआ है कि ये एक रिहर्सल है हमारी तरफ से कि जब पेशेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो उस टाइम हमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े. पहली और सेकंड वेव, थर्ड वेव को आपने देखा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव है, कितनी तैयार आप लोग खुद हैं? क्योंकि सबसे बड़ी दारोमदार जो है वो हेल्थ वर्कर पर है, आप पर है. जी, बस उसमें यही था, पहले वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती थी. इसमें हमें लगता है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा. हम प्रॉपर, हमारे पास सारी तैयारी है. You can see that this hospital can accommodate about 200 patients, COVID patient, and that's why we can say that this is basically what we can see the change as far as the change or the preparation in the Jammu is concerned, because you could see that almost every bed is having a ventilation facility, every bed is having oxygen supply. Earlier I remember that how patients were dying because of the oxygen supply, and cylinders were basically used at that time, and there was no oxygen plant in most of the hospital. But now what has changed, that oxygen plant has been installed in the different hospital, whether it is a main district level hospital or the block level hospital. So this is the major change what we can see, and that's why even the administration, government and the health worker are saying that that is what we are feeling, that now if any wave comes, then definitely we will not suffer that much what we have suffered in the first and the second wave, as people have lost life. So this is the picture of the Jammu hospital, and definitely all over the country the similar kind of action is going on. Right, Ajay, stay with us. Let me quickly rope in my colleague Manohar Kesri, who's joining us on the broadcast. Manohar, now you in fact did take us through the details there in Safdarjung Hospital. Talking about the other hospitals as well, is Mansukh Mandavia or any of the ministers, any of the leaders in fact visiting? All right, I'm learning that I'm also being joined by my colleague Yash. Before we go to you, Manohar, let me quickly in fact take an answer from Yash. Yash, take us through the situation there in Chennai. Which hospital are you present at? Take us through the preparation there. Well, definitely, as you were clearly mentioning, we have been seeing out that Tamil Nadu is reporting very less number of cases. In fact, today 9 cases were reported yesterday. So, a few minutes back, the health minister clearly mentioned that all the preparations have been kept ready, because around in first and second wave, there have been several localities in bed shortage, and all the facilities were in the shortage. But now, the health minister clearly mentioned that all the facilities and preparations are underway. And in fact, 1.75 lakh beds are already kept ready for the upcoming COVID wave. So, we have been clearly seeing out that all the preparations are ready. And in fact, when we talk about the health minister, he has also clearly mentioned that the more than restrictions, the self-safety protocol should be followed by the people, that they should be wearing masks and following the social distancing protocol. So this is the clear information given out by Tamil Nadu government, that till now there will be no restrictions coming up for the new year also, but the health minister urged the people to follow all the restrictions given out by the government and to follow the protocol, the self-safety protocol by wearing masks and following the social distancing protocol. Right, let me quickly rope in Ajay on the broadcast. Ajay, now we in fact had a look at the number of equipments that are being deployed as well. When it comes to resources, the number of beds, number of nurses, number of doctors, as well as oxygen cylinders there in the hospital you're at, and also across Jammu, what is the status of that? Well, see, what I can say that every hospital, whether it is a district level hospital, tertiary hospital, or the hospital in the far-flung area, that is having enough equipment, oxygen supply, as well as whether it is an oxygen concentrator. You could see that this is one of a ward where I can see that number of ventilator, oxygen concentrator, and the other equipments are lying over here, and these are the fresh, which are unused equipments which are lying over here. It clearly shows that
the material and the supplies they have received during the second and the third wave, because during the first wave, I remember that Jammu province were having only 12 ventilators, but as of now what we can say that the presence of ventilation in every hospital is almost 10 to 20 in every district level hospital. This shows that how much supply they have received, how much purchase they have done because of the COVID. And if you could see that this is a hospital which was not functional. This hospital was having a building only when the first wave was started, but what the government has done that they have installed each and every equipment on the war footing level during the first and the second wave, and that's why I remember that the things were purchased and every bed is having ventilator. 200 beds are here and more than 80 ventilators they are having in this hospital. And you could see that this is the process where which is going on over here. They are checking the equipment and the other thing. Sir, I would like to just know that how much ventilator you are having in this hospital, oxygen supply capacity and the other things which is required to you. Right, Oxygen supply, we have got 3 oxygen generation plants. One is of 1200 LPM and 2 of 1000 each. And they supply oxygen to the whole of the 200 beds. High oxygen supply is there. And then we have got all other equipment which are required. And 200 beds can be dedicated to COVID in case the COVID comes. Ventilation, if was a major issue, how many ventilators you are having in this hospital? We have got 45 ventilators which are functional at this present in the wards. We can increase that to more. We have received ventilators from DRD also. So as much as ventilators are required, we have got for every bed, we have got one ventilator. Just imagine that 200 bed hospital is this, and they are saying that we have received 200 ventilator. Each bed will be having a ventilator if any situation arises. So this is the new program, and this is the new plans of the health departments here in the Jammu, as they know that COVID's 4th wave is knocking at the door and we need to be prepared. This is what exactly is happening here in the Jammu, and this is the situation on each and every hospital of Jammu. right. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.